So today we'll start dealing with the nuances that are contained under section 149 of the IPC. So the first point that I'd like to elaborate upon is that a mere presence cannot make a person liable for the offences committed by unlawful assembly. So do not construe the widening of common object to such a degree that you start thinking that no matter what happens in every situation, if a person is present in an unlawful assembly, then he is also liable for the common object. I must emphasize that it is the membership which makes a person liable for the prosecution of common object or for such offense which he knew to be likely to be committed in prosecution of common object. So membership has to be there. Lack of participation is of no parameter. Lack of participation will not hurt the application of section 149. However, do not mistake it with mere presence on the spot. अब इसको ऐसे सोचिए, आप रास्ते में लेट अस सपोज फ्रूट्स लेने निकलें, बीच में एक अनलॉफुल असेंबली है, वो मान लीजिए अपना कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए निकली है और कॉमन ऑब्जेक्ट उसका है ए को मारना. तो अनलॉफुल असेंबली वो ए के घर में घुसती है, उसको मारते मारते बाहर निकालती है और यू आर एन आई विटनेस. वॉट यू आर डूइंग इज़ दैट यू आर वॉचिंग द इंटायर सिनेरियो. तो आप भी भीड़ में खड़े होकर देखने लगते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है. इतने में आप देखते हैं कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली किल्स है. ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यू आर जस्ट अ बाई स्टैंडर्ड, यू आर जस्ट प्रेजेंट एट द स्पॉट. So in this situation, if let us suppose police also mistook you for a member of unlawful assembly, a police officer thinks that you are also a member of unlawful assembly, in this case you will not be liable for any offense that has been committed for the prosecution of common object. All right, आप उस ultimate offense के लिए liable नहीं होंगे क्योंकि neither you are a member nor you participated in that, neither you shared any common object with them. तो क्या mere presence किसी person को liable करवा सकती है under section 149 read with any other substantive provision of the IPC? The answer is no. mere presence नहीं करवा सकती. दो चीज़ें ज़रूरी है, membership और आपका sharing of common object. तो अगर ये दोनों twin criteria satisfied होते हैं तब जाके you can be held liable. Otherwise, by merely being present at the spot, you cannot be held liable. Prosecution ये नहीं कह सकता कि ये भी उस भीड़ का हिस्सा थे. तो कोर्ट पूछेगा कि क्या ये merely present थे या ये मेंबर थे उस अनलॉफुल असेंबली के. तो पता चला आप सिर्फ merely present थे क्योंकि आप जा रहे थे फ्रूट्स खरीदने, पर स्पॉट पे आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी प्रेजेंट हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है. तो इस सिचुएशन में यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली एंड हेंस कॉन्सिक्वेंटली यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड विच फॉर द सेक ऑफ आर इलस्ट्रेशन वॉज द मर्डर ऑफ ए. तो यहाँ पे यू कैन नॉट बी हेल्ड विकेरियसली लाइबल. ठीक है, तो इट इज़ द मेंबरशिप नॉट द प्रेजेंस विच विल गेट यू पनिश्ड. मेंबरशिप को प्रेजेंस से मिस्टेक मत कर लीजिएगा. ठीक है, जब मेंबरशिप साबित हो जाती है तब आप बात करेंगे फिजिकल प्रेजेंस की, लेकिन मियर प्रेजेंस बाय इटसेल्फ विल नॉट रेंडर अ पर्सन लाइबल. ऑलराइट, व्हेन द मेंबरशिप इज प्रूव्ड देन वी टॉक अबाउट योर फिजिकल प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम और नियर अबाउट द प्लेस ऑफ सीन ऑफ क्राइम. बट व्हेन योर मेंबरशिप is not there and you do not share the common object with the unlawful assembly, in those situations your mere presence will not make you vicariously liable for that particular offense, whatever that has been committed in prosecution of its common object. अब इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है
the emphasis is on the common object and not on common intention. Mere presence in an unlawful assembly cannot render a person liable unless there was a common object and he shared the same or was actuated by that common object and that the object is one of those set out in under section 141. तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि मेरली बिकॉज आप उस असेंबली में प्रेजेंट हो गए पर आपने कोई कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर नहीं किया, नाइदर यू आर अ मेंबर ऑफ इट बट यू आर प्रेजेंट in that entire mob or in that entire unlawful assembly, तो इसके लिए आपको लाइबल नहीं किया जा सकता जब तक आपका कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो और यू शेयर दैट कॉमन ऑब्जेक्ट और यू फाउंड दैट कॉमन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अगर वो स्पॉट पे नहीं बना है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट या पहले से नहीं बना हुआ है अनलॉफुल असेंबली का, तो आप लाइबल नहीं किए जा सकते. मेंबरशिप इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद मेयर प्रेजेंस. फिर Supreme Court says, where the common object of unlawful assembly is not proved, the accused persons cannot be convicted with the help of section 149. तो अगर आप common object ही साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आप accused persons को सज़ा नहीं दिलवा सकते by the help of section 149. Alright, 149 में क्या issues आते हैं? पहले की unlawful assembly होनी चाहिए as defined under 141. उसके बाद एक्ट ऐसी होनी चाहिए जो प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में हो, और प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में दो पार्ट्स बनते हैं. एक तो वो एक्ट जो प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में की गई, और वो एक्ट्स सेकेंड पार्ट में वो एक्ट्स फॉल करती हैं विच दी ऑफेंडर्स न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट. तो जब वही चीज़ नहीं प्रूव हो पा रही है बाय द प्रोसिक्यूशन, देन यू कैन नॉट यूज सेक्शन 149. Further, court says that the crucial question is to be determined whether the assembly consisted of 5 or more persons and whether the said persons entertained one or more common objects as specified in 141. Main question ये है जो कोर्ट के सामने हमेशा होता है in the cases of unlawful assembly is whether assembly 5 या 5 से ज़्यादा थी और क्या उनके बीच में एक शेयर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट था या नहीं. ये मेन क्वेश्चन होते हैं, ये क्रूशियल एसेंशियल क्वेश्चन होते हैं. इनके बिना कन्विक्शन नहीं हो सकता 149 में. इट कैन नॉट बी लेड डाउन एज अ जनरल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट अनलेस द कमीशन ऑफ एन ओवर्ट एक्ट इज प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज alleged टू बी द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इट कैन नॉट बी सेड दैट ही इज अ मेंबर ऑफ असेंबली. तो अगेन सुप्रीम कोर्ट वही पॉइंट बोलता है जो मैंने आपको उसमें भी बताया होगा 34 में भी और इसके प्रिलिमिनरी लेक्चर में 149 के प्रिलिमिनरी लेक्चर में भी बताया होगा कि ओवर्ट एक्ट साबित करने की ज़रूरत नहीं है. ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर मेंबर की क्या इंडिविजुअल एक्ट थी, कि किस मेंबर ने कौन सी इंजरी की, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर उनमें से एक मेंबर इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ शेयर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट किसी को मार देता है और वो कॉमन ऑब्जेक्ट सबके बीच में शेयर्ड था, तो नॉट विथस्टैंडिंग किसी ने भी कोई हरकत नहीं की सिवाय ऑफ दैट वन मेंबर, ऑल ऑफ देम विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है, तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई ओवर्ट एक्ट अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे की वर्ड है कि ओवर्ट एक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट एवरी मेंबर. ओनली थिंग दैट हैज़ टू बी डिटरमाइंड इज शेयरिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट and the assembly consisted of 5 or more persons. ठीक है, the only thing required is that he should have understood that the assembly was unlawful and was likely to commit any acts which fall within the purview of section 141. तो सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेज कि जो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए वो ये है कि उसको ये जानना चाहिए कि उसको ये पता हो कि असेंबली अनलॉफुल है और ये पता हो कि इट वाज लाइकली टू कमिट सम ऑफ द एक्ट्स विच फॉल अंडर द परव्यू ऑफ 141. 141 इन इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड एंड जब अनलॉफुल असेंबली प्रूव हो जाती है देन वी टॉक अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर 149. तो द वर्ड ऑब्जेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने एलैबोरेट किया है कि ऑब्जेक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है. द वर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस और डिज़ाइन एंड इन ऑर्डर टू मेक इट कॉमन इट मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल.
In other words, object should be common to the persons who compose the assembly. That is to say, they should be aware of it and concur in it. Concur मतलब agree करना. A common object may be formed by express agreement after mutual consultation. ठीक है, express agreement मतलब कि एक्सप्रेसली बता के कर रहे हैं और म्यूचुअली कंसल्ट हुआ है वो कॉमन ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो हुआ है कॉमन ऑब्जेक्ट पे यू फाइनलाइज्ड. एंड बट दैट इज़ बाय नो मीन्स ऑलवेज नेसेसरी. हर केस में एक्सप्रेस एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है, ये स्टेज बाय स्टेज भी डेवलप हो सकता है. Supreme Court further says it may be formed at any stage by all or a few members of the assembly and the other members may join or adopt it. तो ये भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेस या म्यूचुअल कंसल्टेशन शुरुआत में ना रहा हो, पर कुछ मेंबर्स ऑफ द असेंबली ने वो मान लो कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया जो अनलॉफुल है. लेट अस सपोज मर्डर का कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया. तो जब उन्होंने मर्डर का कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया तो जो बाकी के मेंबर्स हैं अगर उन्होंने उस कॉमन ऑब्जेक्ट में ज्वाइन किया या उसे अडॉप्ट कर लिया तो दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल. ठीक है. The expression in prosecution of common object as appearing in section 149 have to be strictly construed as equivalent to in order to attain common object. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन prosecution of common object को आपको पढ़ना चाहिए ऐसे in order to attain the common object. It must be immediately connected to the common object by the virtue of nature of the object. तो मतलब वो मेन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए. मान लीजिए जैसे आई गेव यू दैट इलस्ट्रेशन यस्टरडे, मैं आज फिर आपको बताता हूँ कि एक अनलॉफुल असेंबली ए को मारने जाती है उसके घर पे. तो यहाँ पे जो एंड गोल है वो है ए को मारना. अब एक फैमिली मेम्बर भी रिसाइड करते हैं उसके साथ. एंड अनलॉफुल असेंबली नोज दैट फैमिली मेम्बर्स रेजिस्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल है कि उनको भी मारा जा सकता है, पर ये कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है. कॉमन ऑब्जेक्ट एक ही को मारना है. दिस इज़ जो फैमिली मेम्बर्स का जो मर्डर होगा अगर होता है तो वो सेकेंड पार्ट में फॉल करेगा एज द मेम्बर्स न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. तो फिर ये सोच के ये लोग सारे जाते हैं ए के घर में. नेचुरली ए के फैमिली मेम्बर्स भी रेजिस्ट करते हैं एंड दे आर ऑल्सो किल्ड बाय द मेम्बर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली. इन दिस सिचुएशन ये जो पॉइंट था इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इसको आप ऐसे समझिए इन ऑर्डर टू अटेन द कॉमन ऑब्जेक्ट. तो जब ए के फैमिली मेम्बर्स रेजिस्ट कर रहे थे तो ए की जो हत्या मेन करनी थी उसका जो फाइनल गोल था जो असेंबली का वो नहीं पूरा हो सकता था जब तक उसके मेंबर्स को रास्ते से ना हटाया जाए. तो असेंबली ने अनलॉफुल असेंबली ने पहले मेंबर्स को ख़त्म किया फैमिली के, फिर ए को मारा. तो दिस शोज दैट द मर्डर ऑफ द फैमिली एज वेल वॉज कवर्ड अंडर द एक्सप्रेशन विच द ऑफेंडर्स न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, एंड the expression in prosecution of common objects can be easily understood in the language that it is in order to attain the common object. ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं. Continuing further, Supreme Court said it must be immediately connected with the common object by the virtue of nature of the object. There must be community of the object and the object may exist only up to a particular stage, not thereafter. Members of the unlawful assembly may have community of object up to a certain point, which they may differ in their objects and knowledge possessed by each member of what is likely to be committed in prosecution of common object may vary not only according to the information at his command, but also according to the extent to which he shares the community of the object. As the consequence of this effect of 149 IPC may also vary on different members of same assembly. तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि कभी कभी ये भी हो सकता है फैक्टर सर्कमस्टेंसेस में कि सर्कमस्टेंसेस, मान लीजिए असेंबली इतनी बड़ी है
कि उसमें असेंबली के अंदर कई छोटी छोटी अनलॉफुल असेंबलीज हो सकती हैं और सबका कॉमन ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को भी इमेजिन कर रहा है कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि एक असेंबली के अंदर अलग अलग कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं टू प्रोसिक्यूट अ स्पेसिफिक थिंग। तो फिर उनके हिसाब से उनके ऊपर लाइबिलिटी जो उनका पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से लगाई जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एक इलस्ट्रेशन देता हूँ तो ये थोड़ा आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 200 लोगों की भीड़ है, 200 लोगों की भीड़ में से सबका कॉमन ऑब्जेक्ट एक चीज़ है, रॉबरी करना। ठीक है, फॉरगेट अबाउट डकैती राइट नाउ, अभी डकैती भूल जाइए, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है रॉबरी करना। एंड जब 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी करते हैं तो वो डकैती कहलाती है एक्चुअली, लेकिन हम अभी कॉमन ऑब्जेक्ट उसी की बात कर रहे हैं, लेट अस कॉल इट डकैती ओनली। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग एक लोकेलिटी में जाते हैं, कोई भी लोकेलिटी आप इमेजिन कर लीजिए, उस लोकेलिटी में जाएंगे और उस लोकेलिटी में जितने भी घर हैं हम उन सबको लूटेंगे। अब इन्हीं 200 की भीड़ में से 50 मेंबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, रॉबरी तो करेंगे, डकैती तो करेंगे ही करेंगे, बट इफ़ वी फाइंड वुमेन विच वी लाइक वी विल ऑल्सो अबडक्ट देम और वी माइट इवन कमिट रेप। ये उनके 50 का कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन बाकी 150 मेंबर्स को ये नहीं पता है। उस 200 की भीड़ में से 25 मेंबर्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सारा कुछ लूटने के बाद, सारा कुछ ले जाने के बाद हम पूरी लोकेलिटी में आग लगा देंगे। ठीक है, ये भी सारे 200 मेंबर्स को नहीं पता है। सो यहाँ पे 25 मेंबर्स के पास एक अलग सा कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट तो शेयर कर ही रहे हैं पर उनका एक स्पेशल कॉमन ऑब्जेक्ट भी है। और 50 मेंबर्स का अबडक्शन ऑफ वुमेन और रेप वाला, वो उनका एक अलग कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, और मान लीजिए वो 50 मेंबर जो हैं वुमेन के एबडक्शन और रेप में सक्सीड कर जाते हैं, तो उनको उनके स्पेसिफिक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो मेन ट्रांजैक्शन से हट के जा रहा है। और वहीं पे अगर मान लीजिए रॉबरी करने के बाद जो बाकी की भीड़ थी वो चली गई और जो बाकी के 25 लोग बचे थे उन्होंने क्या किया, उस पूरी लोकेलिटी में आग लगा दी, तो उनको उनकी इंडिविजुअल एक्ट के लिए सज़ा मिलेगी, दैट इज़ मिस्चिफ बाय फायर। उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी अलॉन्ग विद शेयरिंग द लार्जर कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटिंग डकैती। तो 200 के 200 जो मेंबर हैं वो लार्जर कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटिंग डकैती में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो ये स्पेशल कॉमन ऑब्जेक्ट जो उसी बड़ी असेंबली के अंदर था, जो बाकी के मेंबर्स ने शेयर नहीं किया था, सारे मेंबर्स ने शेयर नहीं किया था, तो उनको उनके इंडिविजुअल कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अलग से सज़ा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो मेन ट्रांजैक्शन से हट के जा रहा है। तो ये भी देखना फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पे बहुत ज़रूरी है कि क्या सारे लोगों के बीच में वो कम्युनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शेयर हुआ था, और दूसरा क्या सारे लोगों को ये नॉलेज थी, और नॉलेज लाइक्लीहुड पे और प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी नियरिंग सर्टेनिटी के लेवल पे जाती है। ठीक है, नॉलेज का क्रिमिनल लॉ में जो मतलब होता है, मैंने आपको केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में की डेफिनेशन दी होगी, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन सेंट्रिक चीज़ होती है। जनरली हम उस एक रीजनेबल और प्रूडेंट मैन का भी टेस्ट लेते हैं इस पर, तो ये डिफ़र कर सकता है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। अभी जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया उसके हिसाब से तो ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो मेन कॉमन ऑब्जेक्ट था उसी के अंदर अगर ये एक्ट्स हो गई तो वो उसके लिए सब लोग भी लायबल हो सकते हैं। उसके लिए अलग अलग फैक्टर सर्कमस्टेंसेस होते हैं और वो वैसे ही डील किए जाएंगे जैसा कि रिकॉर्ड पे प्रूव होता है। रिकॉर्ड पे प्रूव होना इन अ टेक्निकल लैंग्वेज मीन्स कि ट्रायल के दौरान प्रूव होता है। देन आई विल टेल यू अबाउट अनदर पॉइंट। कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन आर नॉट सिनोनिमस।
A common object is different from common intention as it does not require a prior concert and a common meeting of minds before the attack. It is enough if each has the same object in view and their number is 5 or more and they act as an assembly to achieve that object. The common object of an assembly is to be ascertained from acts and the languages and the utterances of the members composing it, the nature of the arms carried and the consideration of all the surrounding circumstances. तो अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली आप असर्टेन कर सकते हैं उनकी एक्ट से, कंडक्ट से, लैंग्वेज से, अटरेंसेस से और बाय द नेचर ऑफ द आर्म्स कैरीड और फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एक्सेट्रा. तो आप इस कंक्लूजन के लिए एक इलस्ट्रेशन सुन लीजिए. क्या है? अगर एक अनलॉफुल असेंबली है, मान लीजिए तलवार लेके बाहर निकली है, तो आप एक रीजनेबल प्रिजम्पशन तो बना सकते हैं ना कि हो सकता है किसी को मारने के लिए लोग निकले हों. अगर वो अनलॉफुल असेंबली वहाँ पे किसी का मर्डर कर देती है और उनके पास डेडली वेपन्स हैं, तो यू कैन मेक दैट प्रिजम्पशन ईजीली. सेकेंडली, अगर मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली आर्म्स लेके गई भी है और वहाँ पे चिल्ला रही है मारो मारो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रूव. तो ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे एविडेंस आता है, उसके बेसिस पे यू कैन प्रूव और डिसप्रूव पर्टिकुलर फैक्ट. लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या एक्ट्स की गई, क्या रिजल्ट हुआ उन एक्ट्स का, लैंग्वेज असेंबली की क्या थी और क्या अटर किया मेंबर्स ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफेंस वाज बीइंग कमिटेड, नेचर ऑफ द आर्म्स कैरीड और बाकी के फैक्टर सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशन में अराइज होते हैं, उनको देखते हुए जो कोर्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट इन्फर कर सकती है. देन इट मे बी गैदर्ड ऑल्सो फ्रॉम द कोर्स ऑफ कंडक्ट अडॉप्टेड बाय एंड द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली एट और बिफोर द एक्चुअल कन्फ्लिक्ट. What the common object of the unlawful assembly is at a particular stage of the incident is essentially a question of fact. याद रखिएगा ये, it is a question of fact, not a question of law. It is a question of fact to be determined keeping in view the nature of the assembly, the arms carried by the members and the behavior of the members at or near the scene of the incidents. It is not necessary under law that in all cases of unlawful assembly with an unlawful common object, the same must be translated into action or be successful. तो लॉ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो अनलॉफुल असेंबली जिस ऑब्जेक्ट को साबित करने के लिए निकली है उसमें सक्सीड ही हो जाए. अगर वो फेल भी हो जाती है, इवन देन इट्स स्टिल एन अनलॉफुल असेंबली एंड लायबल एज सच. हाँ, ये हो सकता है कि वो उसका सब्सटेंशिव ऑफेंस में बाय द यूसेज ऑफ 149 कन्विक्शन ना हो पाए, लेकिन 149 में ज़रूर कन्विक्शन हो जाएगा. और अगर मान लीजिए उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था किसी को मर्डर करना, लेकिन मार नहीं पाया, सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर हो पाया, तो 307 रेड विद 149 में कन्विक्शन हो जाएगा. याद रखिएगा 149 इज नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस, ये खुद में भी सब्सटेंशिव ऑफेंस है, इसकी खुद की भी सजा है. सो कॉमन ऑब्जेक्ट में ऑल्सो डेवलप eo instanti. Eo instanti is Latin for on the spot or in an instant. So under the explanation to section 141, an assembly which is not unlawful when it was assembled may subsequently become unlawful. It is not necessary that the intention or the purpose which is necessary to render an assembly an unlawful one comes into existence at the outset. The time of forming an unlawful intent is not material. An assembly which at its commencement or even for some time thereafter is lawful may subsequently become unlawful. In other words, it can develop during the course of incident or at the spot eo instante. Then we come to another point जो necessary है. Points छोटे छोटे हैं कि knowledge और membership, लेकिन आप समझने के लिए आपको पहले ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. देन यू आर एबल टू समराइज विद इन अ फ्यू वर्ड्स. जैसे अगर मुझे कहना है कि मेयर प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, तो मैं सीधे कैसे मेयर, इट इज़ ओनली द मेंबरशिप विच इज़ द डिटरमिनेटिव क्राइटेरिया, नॉट मेयर प्रेजेंस.
अब आपको पता है कि जिस हिसाब से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आप उसको इन अकॉर्डेंस विद दैट आंसर कर सकते हैं. So once you have understood a concept, a principle can be summarized within a few sentences. But in order to get to that level, you have to perform a large amount of reading. आपको बहुत पढ़ना पड़ता है. You have to read a lot in order to summarize the concept and have the capacity to understand all its dimensions that it encapsulates within a single sentence or even a single word. तो आपको थोड़ा थोड़ा legislative drafting की आदत हो जाएगी when you have this habit of summarizing big concepts into small words. So the next point I come to is positive knowledge is necessary. Section 149 IPC consists of two parts. The first part of the section means that the offence to be committed in prosecution of common object must be one which is committed with a view to accomplish common object. In order that the offence may fall within the first part, the offence must be connected immediately with the common object of the unlawful assembly of which the accused was member. Even if the offence committed is not in direct prosecution of the common object of the assembly, it may yet fall under section 141 if it can be held that the offence was such as the members knew to be likely to be committed, and this is what is required in the second part of that section. तो हालांकि ये हो सकता है कि आपका जो कॉमन ऑब्जेक्ट जो मेन था वो उतना मेजर नहीं था, लेकिन अगर उसकी नॉलेज में और भी ऑफेंस, लेकिन अगर उस कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में और भी ऑफेंसेस अगर कमिट हो जाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन you can also be held to be liable if it is found that the members knew it to be likely to be committed. ठीक है, इसके अभी मैंने जितने इलस्ट्रेशन दिए उन्हीं की लाइट में इसको समझिएगा. The purpose for which the members of the assembly set out or desired to achieve is the object. तो जिस कारण की वजह से, जिस उद्देश्य से मेंबर्स बाहर निकले हैं जिसको अचीव करने के लिए, वो उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. कॉमन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. इफ द ऑब्जेक्ट डिजायर्ड बाय ऑल द मेंबर्स इज द सेम, the knowledge that is the object which is being pursued is shared by all the members, and they are in general agreement as to how it is to be achieved, and that is now the common object of the assembly. तो एक बार ऑब्जेक्ट डिजायर्ड बाय द मेंबर्स फाइनलाइज हो गया, तो नॉलेज क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट आप चाहते हो लेना उसको किस मैनर में लोगे, ये भी उसका पार्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो एन ऑब्जेक्ट एंटरटेन्ड इन द ह्यूमन माइंड एंड बीइंग मेयरली अ मेंटल एटीट्यूड, नो डायरेक्ट एविडेंस कैन बी अवेलेबल. क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या मोटिव है, वो जब तक आपके माइंड में तब तक पता तो चल नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ इंटायरली विद इन योर हेड. वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट, और डायरेक्ट एविडेंस जनरली इन केसेस में अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि इंटेंशन के केसेस में. तो ये गैदर किया जाता है फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द पर्सन हु कमिट्स इट. इंटेंशन की तरह कॉमन ऑब्जेक्ट गैदर किया जाएगा बाय द एक्ट्स, कंडक्ट एंड द रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेज वेयर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच अ पर्टिकुलर ऑफेंस वॉज कमिटेड. तो आप उससे गैदर करेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट आपने किस पर्पस से प्रोसिक्यूट किया. वो आपकी एक्ट से पता चल जाता है, वो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से पता चल जाता है, वो कंडक्ट से पता चल जाता है. ठीक है, इन्फेरेंस उससे आप बना सकते हैं. सो इफ द ऑब्जेक्ट डिजायर्ड बाय ऑल द मेंबर्स इज द सेम, द नॉलेज दैट इज द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग परसूड इज शेयर्ड बाय all the members, and they are in general agreement as to how it is to be achieved, and that is now the common object of the assembly. And since it is entertained in the human mind, and it being merely a mental attitude, no direct evidence can be made available, and like intention has to be gathered from acts which the person commits and the results therefrom. Though no hard and fast rule can be laid down regarding as to the circumstances from which the common object can be called out, it may reasonably be collected from the nature of the assembly, arms it carries, and behavior at or before after the scene of incidents. The word new used in the second branch of the section 149
implies something more than a possibility and it cannot be made to bear a sense of might have been known. तो जो नॉलेज इम्प्यूट की गई है सेक्शन 149 में सेकेंड पार्ट में, which uses the word which the members knew to be likely to be committed. जो न्यू है, जो नॉलेज वो पपोर्ट कर रहा है, वो मियर पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही आप उसको ऐसे कंस्ट्रू करेंगे कि न्यू का मतलब माइट हैव नोन, पता होना चाहिए था, नहीं. इसके लिए पॉजिटिव नॉलेज नेसेसरी है, पॉजिटिव नॉलेज. So when an offence is committed in the prosecution of a common object, it would generally be an offence which the members of the unlawful assembly knew was likely to be committed in the prosecution of that common object. That, however, does not make the converse proposition true. There may be cases which would come within the second part but not within the first part. So there is a distinction between the two parts of section 149 and it cannot be ignored or obliterated. In every case, it would be an issue to be determined whether the offence committed falls within the first part or it was the offence such as the members of the assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of common object and falls within the second part. However, there may be cases which would fall within the first part, being an offence committed in the prosecution of common object, while at the same time, though not always, falling within the second part as the offences which the members of the unlawful assembly knew to be likely to be committed by the persons engaged in the prosecution of common object and acting with the purpose of executing it. तो ये जो पॉइंट है ना, जो डिफरेंस है कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, ये कई केसेस में रिकग्नाइज्ड है. प्राइमरली चिकरंगे गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ मसूर decided on AIR 1950, reported in AIR 1956 Supreme Court, page number 731, and it was also noted by the Supreme Court in Sukhbir Singh versus State of Haryana, reported in SCC volume number 3, year 2002, page number 327. Common object in the terms of 149 can also develop on the spot. Existence of the object has to be considered at the time of the actual occurrence and not necessarily from the anterior point of time. तो ऑकरेंस के हिसाब से ही आप डील करेंगे कि वो था वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट या नहीं था. ज़रूरी नहीं है हर केस में पहले ही होना चाहिए, कभी कभी हो सकता है स्पॉट पे बन जाए, कभी कभी आपको पहले अवेलेबल हो जाता है. तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो नॉलेज की बात की गई, जो न्यू शब्द यूज़ किया गया है 149 में, वो पॉजिटिव नॉलेज का है. अब इसका भी इलस्ट्रेशन जान लीजिए. अब जैसे अब एक अनलॉफुल असेंबली किसी एक पर्टिकुलर वुमन को अबडक्ट करने जा रही है. वो वुमन अपनी फैमिली के साथ रहती है, सबको पता है फैमिली मेम्बर्स रेजिस्ट करेंगे, सो दे कैरी डेडली वेपन्स. और डेडली वेपन्स वो जो कैरी कर रहे हैं वो उनकी एक्ट है, वो दिख रहा है कि ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं इसका, और डेडली वेपन्स लेके जा रहे हैं इतनी भीड़ में भी. इट शोज दैट दे एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स एंड दे believe that it may be necessary to dispose of family members if at all the family members resist in the abduction of that woman. तो ऐसे केस में अगर फैमिली मेम्बर्स रेजिस्ट करते हैं, अनलॉफुल असेंबली उन्हें मार देती है, तो ऐसे केस में ये वो ऑफेंस है ऑफ विच द मेम्बर्स हैड पॉजिटिव नॉलेज. ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव नॉलेज थी. कॉमन ऑब्जेक्ट तो उनका था वुमेन को अबडक्ट करना, लेकिन पॉजिटिव नॉलेज इस बात की भी थी कि जिसको हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं अगर उसके फैमिली मेम्बर्स रेजिस्ट करेंगे तो विल किल देम. तो दीज वर द ऑफेंसेस दे न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट. कमिंग टू अनदर केस, दैट इज मिजाजी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इसमें प्राइमरी रिलायंस बेस की गई थी क्वीन वर्सेस सबीद अली. 1873 में रिपोर्ट हुआ था वेल्स लॉ रिपोर्टर में, पेज नंबर 5 में. तो प्रिंसिपल इन केसेस के भी वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए जितने भी, कि जो सेक्शन 149 है इसमें दो पार्ट्स हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो अलग है और सेकंड पार्ट जो न्यू टू बी लाइकली कमिटेड इन ऑफेंसेस न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, वो सेकंड पार्ट है. तो इस केस में भी वही डिफरेंस क्रिएट किया गया और वही रेशियो बताया गया जो विच आई एक्सप्लेन टू यू
कि ऐसा हो सकता है कि कई बार केस जो ऑफेंसेस हैं फर्स्ट पार्ट में ना फॉल करें पर सेकंड पार्ट में फॉल करें, जैसे कि अभी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया वुमेन के अबडक्शन का। साथ में ये भी बात, इस केस में ये भी बात की गई थी कि प्री कंसर्ट प्लान लाइक जो कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। इट इज़ इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट इज़ अडॉप्टेड बाय द ऑल मेंबर्स एंड इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो उसमें भी वो आ सकता है। अच्छा, फिर अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनली कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो पर वो शेयर किया जा सकता है। मान लीजिए एक असेंबली जाती है ए से झगड़ा करने, ठीक है, तो ओरिजिनली उनका जो प्लान होता है वो ए को चैस्टाइज करना होता है। फिर जब ए से झगड़ा हो रहा होता है तो ए थोड़ा वायलेंट हो जाता है। कुछ मेंबर्स फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसको मार देने का, तो उसको मारने लगते हैं। फिर जो बाकी की भी भीड़ होती है अनलॉफुल असेंबली, वो भी ऐसे पार्टिसिपेट करती है इंस्टेंस में जैसे कि वो ए को मारना चाहती है, तो वो भी फेटल इंजरीज करते हैं। फिर बीच में जो बचाने की कोशिश करता है उनको भी रोकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो कुछ मेंबर्स का जो मारने का इंटेंशन था, कॉमन ऑब्जेक्ट था, वो अडॉप्ट कर लिया। तो जब उन्होंने वो मारने का कॉमन ऑब्जेक्ट अडॉप्ट कर लिया तो दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल अंडर 149। तो ये भी हो सकता है कि ओरिजिनल कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ और हो और बाय फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज में एक नया कॉमन ऑब्जेक्ट आ जाए जिसको बाकी के मेंबर्स अडॉप्ट कर लें। ठीक है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज। अब इसी केस में अगर बाकी के मेंबर्स खुद ही रोकने लगते हैं उन मेंबर्स को अटैक करने से, तो ये दिख जाता कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट मारने का नहीं था, ए को सिर्फ चैस्टाइज करने का था। लेकिन अगर असेंबली के मेंबर्स मारने लगते हैं सब लोग मिल के और बाकी लोग बीच बचाव करने वालों को भी रोकते हैं कि नहीं कोई बीच में नहीं आएगा, दे लेट इट हैपन, सो इन दैट केस ये माना जाएगा कि उन्होंने एक नया कॉमन ऑब्जेक्ट जो पहले कुछ मेंबर्स का था वो अडॉप्ट कर लिया या शेयर कर लिया। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का प्राइमरीली ध्यान रखिएगा। आप डिफरेंस के लिए 149 के पास फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस है और सेकंड पार्ट में डिफरेंस है, और जो नॉलेज है रिक्वायर्स पॉजिटिव नॉलेज, इट इज़ नॉट अ मियर पॉसिबिलिटी सच एज माइट और माइट नॉट हैपन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें क्या कहते हैं नहीं आती हैं। पॉजिटिव नॉलेज चाहिए, माइट नॉट हैपन या मियर पॉसिबिलिटी उसकी डेफिनेशन में नहीं आती है नॉलेज की। तो ये जो न्यू है 149 में ये वो है जो प्रोबेबिलिटी, इट इज़ ऑलमोस्ट टचिंग सर्टेनिटी। ठीक है, जैसे अभी मैंने वुमन वाला एग्जांपल दिया था, वेयर इन अ विलेज बॉडी ऑफ हेविली आर्म्ड men set out to take a woman by force, someone is likely to be killed and all the members of the unlawful assembly must be aware about the likelihood and would be guilty under the second part of 149. ठीक है, similar is the case when a body of persons go armed to take forcible possession of land. It would be equally right to say that they have the knowledge that the murder is likely to be committed if the circumstances as to weapons carried and other conduct of the members of the assembly clearly point to such conduct, and it also points to the knowledge on the part of them all. ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप इसके लिए मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस है, क्वीन वर्सेस साबिद अली बेस था इस केस का, और ये पोजीशन ऑफ लॉ इंडिया में भी अप्रूव्ड है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑफ कोर्स इट वाज द सिचुएशंस अर्लियर प्रिवेलिंग इन इंडिया व्हेन वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, बट आफ्टर दिस द सिचुएशन एंड द इंटरप्रिटेशन दैट द प्राइवी काउंसिल मेड ऑन दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। सिमिलरली लेक्चर के स्टार्ट में से लेके अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट वाज डिसाइडेड ऑन 16 जनवरी 2009, उसमें भी यही पॉइंट बता के समराइज़ किए हैं। तो आप चाहें तो वो केस भी रेफ़र कर सकते हैं, मैंने आपको स्टडी नोट्स में ये सारे केस अवेलेबल कराए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। वी आर प्राइमरली डन विद दिस, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. It has to be primarily borne in mind that overt act and active participation, even though can indicate common intention and sharing of a common object, mere presence in unlawful assembly
may fasten mere membership in unlawful assembly may fasten vicarious liability under section 149. कभी भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 149 में आपको ओवर्ट एक्ट हर मेंबर की साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, और आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हर मेंबर का प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे केस में मियर मेंबरशिप विल फास्टन विकेरियस लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 149। वो आपके लिए उसको वो आपको लाइबल करवा देगी by the virtue of section 149 read with any other substantive offence that has been committed in the prosecution of common object or which the members knew to be likely to be committed. इसके लिए कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस डैन सिंह और लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, मियर प्रेजेंस क्या कहते हैं, मियर प्रेजेंस को मियर मेंबरशिप लिखने की बजाय मियर प्रेजेंस लिख दिया है। वो गलत है, वो मियर मेंबरशिप की बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ केसेस हैं जहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग द अर्लियर जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे मियर प्रेजेंस लिख दिया है, बट क्लैरिफिकेटरी जजमेंट्स में ये पॉइंट हमेशा बताया गया है कि वो मियर मेंबरशिप की बात कर रहे थे, नॉट बाय मियर प्रेजेंस। मियर प्रेजेंस तो वैसे भी हो सकती है कि आप सामान खरीदने निकले और वहाँ पे भीड़ में देख रहे हैं क्या हो रहा है, एंड देन यूर लायबल, और आप कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर भी नहीं करते हैं पर असेंबली में प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे भी अगर मियर प्रेजेंस से ही आपको लायबल हो जाते तो आप उस केस में भी जो अल्टीमेट एक्ट जो कमिट की गई है उसके लिए भी लायबल हो जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149। तो ये नहीं अलाउड है। उन केसेस में प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट मेंट मियर मेंबरशिप, जिसको गलती से मियर प्रेजेंस लिख दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, जजमेंट कभी स्टैट्यूट की तरह नहीं पढ़े जाते। जजमेंट्स आर अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट, इन द लैंग्वेज विच द जजेस मीन्स। ठीक है, कमिंग टू द अनदर पॉइंट, ये बात याद रखिएगा कि I'll reiterate again because it is very important. Mere presence by itself will not impart vicarious liability and will not burden a person with vicarious liability under section 149. It is only the membership while sharing the common object of the assembly that will make a person liable under section 149 and with any other substantive offence that has been committed in the prosecution of कॉमन ऑब्जेक्ट। ये ट्विन रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये साबित कैसे होंगी? एक्ट्स, कंडक्ट्स, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, नेचर ऑफ द आर्म्स कैरिड, नेचर ऑफ द वेपन्स कैरिड, नेचर ऑफ द अटरेंसेस एक्सेट्रा, उससे गैदर हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेयर मेंबरशिप सफिशिएंट है। प्रेजेंस एट द स्पॉट के आसपास रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एट द एग्जैक्ट सीन ऑफ द क्राइम पे रहें। स्पॉट से थोड़ा दूर बस भी अगर आप प्रेजेंट हैं देन यू आर लायबल, बट इतना भी दूर होना नहीं चाहिए कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आदमी मेन रोड पे है, गाड़ी एकदम स्टार्ट किए हुए 7 लोगों को भेजता है कि जाके बैंक लूट आओ। ये मैंने एग्जाम्पल आपको कॉमन इंटेंशन वाले में दिया था, अब कॉमन ऑब्जेक्ट वाले में दे रहा हूँ। वो वहाँ पे मेन रोड पे खड़ा होता है, कार एकदम स्टार्ट किए हुए, और बैंक मान लीजिए 25 मीटर की दूरी पे है। 7 लोग उसकी कार से निकलते हैं और जाते हैं सीधे बैंक में, बैंक लूट के ले आते हैं और सीधे कार में घुसते हैं और फिर कार चला के वो जो 8वां अक्यूज था, ये लोग भाग जाते हैं। इनका जब प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो 8वां अक्यूज ये पॉइंट लेता है, मैं तो मेन रोड पे था, वो बैंक से एकदम 25 से 50 मीटर की दूरी पे, तो मैं कैसे लायबल हो सकता हूँ क्योंकि मैं तो स्पॉट पे था ही नहीं। तो कोर्ट कहेगा कि यू शेयर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी उसका कॉमन ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाइए कि एग्जैक्ट सीन ऑफ क्राइम पे ज़रूरी होना पे प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी अ मेम्बर ऑफ दैट पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली। अब पता चला वो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, उसका कोई वहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, तो वहाँ पे वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर ऐसे में आपको किसी ऐसे व्यक्ति को पनिश करवाना है जिसने ऐसा प्लान बनाया हो और उस प्लान के परसुएंट में बैंक रॉबरी की गई हो या कोई ऑफेंस किया गया हो, तो ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी में आता है। तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति दुनिया में भी कहीं हो, वो लायबल हो सकता है। लेकिन अनलॉफुल असेंबली का
कुछ नुआंस है, एग्जैक्ट सीन ऑफ क्राइम पे नहीं बट नियर बाय सीन ऑफ क्राइम पे, रीजनेबली नियर बाय होना चाहिए, ठीक है. सो कमिंग टू द केस ऑफ गजानन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, Supreme Court said under section 149 liability of the other members of the offences committed during the continuance of occurrence rests upon the fact that whether other members knew beforehand that the offence actually committed was likely to be committed in the prosecution of common object. Such knowledge may be collected from the nature of the assembly, arms, behavior at or before the scene of action. If such knowledge may not reasonably be attributed to the other members of the assembly, then their liability for the offence committed during the occurrence does not arise. However, I am quoting now the case of Amreek Singh versus State of Punjab, AIR 1993, Supreme Court, page number 2482. In this case, Supreme Court said, in the case of free fight, section 149 could not be invoked because there may not be a common object in a sudden fight, but in a planned attack. But in the case of a planned attack on a victim, presence of common object amongst the persons forming unlawful assembly can be inferred. Planned attack में हो सकता है, लेकिन जनरली इन अ केस ऑफ फ्री फाइट 149 नहीं इन्वोक होता. तो फ्री फाइट क्या होती है कि मान लीजिए दो राइवल ग्रुप्स किसी स्पॉट पे गलती से मिल गए, दोनों में कहा सुनी हुई और मारपीट हो गई, तो बाय इटसेल्फ 149 नहीं इन्वोक हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है इंडिविजुअल. लेकिन अगर एक प्लान्ड अटैक होता है तो जनरली बड़े आराम से प्रिजम्पशन बन सकता है कि देयर वाज अ कॉमन ऑब्जेक्ट इफ़ देयर वाज अ प्लान्ड अटैक. अब एक केस बताता हूँ इलस्ट्रेशन के लिए, एम्परर वर्सेस काबिल 1869 का है, इसलिए इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ. अ लार्ज बॉडी ऑफ मैन बिलोंगिंग टू वन फैक्शन वे लेड अनदर बॉडी ऑफ मैन बिलोंगिंग टू सेकंड फैक्शन. वे लेड का मतलब उन्होंने पीट दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उनको. एंड अ फाइट ensued between the course of their in the course of which a member of the first faction was wounded. So what happened in this case that a large body of men first of all stopped. वेलेट का लिटरल मतलब होता है टू स्टॉप, बट इन अ कभी कभी कंटेक्स्ट में उसका मतलब ये भी हो सकता है कि यू स्टॉप द पर्सन फ्रॉम लिविंग ऑल्सो. कंटेक्स्ट पे मैटर करता है कि क्या होता है. सो हुआ क्या कि एक फैक्शन ने दूसरे आदमी को, दूसरे फैक्शन को रोका. फाइट हुई, फाइट के चक्कर में उनमें से एक मेंबर को बहुत गहरा वुंड लगा और वो रिटायर कर गया, एक रोड की एक साइड पे चला गया सरकते हुए, और ही जस्ट सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दी असेंबली. और फिर उसने कोई एक्टिव पार्ट नहीं लिया अफ्रे में, ठीक है. सो आफ्टर हिज रिटायरमेंट अ मेंबर ऑफ द सेकंड फैक्शन वाज किल्ड. दूसरे फैक्शन का मेंबर मारा जाता है. इट वाज हेल्ड that the wounded man has ceased to be the member of the unlawful assembly when he retired wounded and cannot be made liable for the subsequent murder read with section 149. तो ये समझ लीजिए कि जिसको wounded man को चोट लगी वो रिटायर हो गए, वो साइड पे आ गए कि यार मुझे चोट लगी है, मैं लड़ नहीं सकता, वो अपना किनारे से रख लिए. उसके बाद आगे चल के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइट एक का मर्डर हो जाता है. तो क्या जो वुंडेड मैन था, जो रिटायर कर चुका था पहले ही फाइट से, क्या आप उस पर लाइबिलिटी इम्पोज कर सकते हैं ऑफ मर्डर रेड विद 149? एम्परर वर्सेस काबिल में एनी फैक्टर सर्कमस्टेंसेस में ना बोला गया था, ठीक है. वेयर अ लार्ज बॉडी ऑफ मैन बिलोंगिंग टू वन फैक्शन वे लेड द अनदर बॉडी ऑफ मैन बिलोंगिंग टू सेकंड फैक्शन एंड अ फाइट एंस्यूड सब्सिक्वेंटली, ठीक है. वे लेड का लिटरल मतलब होता है टू स्टॉप समवन. ऑलवेज रिमेंबर दैट. When you're reading the judgment of English judges, you need to know the context in which they speak. Then we come to the Vitthal versus State of Maharashtra. It was decided it was reported in AIR 1983, Supreme Court, page number 179. इस केस में क्या हुआ था? Accused persons were lying in wait at different places, splitting themselves into smaller groups, so they may not attract attention. They joined together at the place of incidents without much appreciable interval of time. They further attacked the deceased jointly and in succession. At one point, they simultaneously attacked the deceased. Afterwards,
Together they dragged the dead body. It was held that the accused were animated by the common object and they became the member of the unlawful assembly. तो सिंपली बताने के लिए आपको बताता हूँ, इस केस में क्या हुआ था कि एक ग्रुप ने, एक अनलॉफुल असेंबली ने अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लिया जिससे किसी को शक ना हो. तो जब डिसीज्ड आ रहा था उस रास्ते से तो अचानक से सबने मिल के उस पर हमला बोल दिया और सबने मिल के मारा. और जब वो मर गया तो उसकी बॉडी एक साथ ड्रैग की और ठिकाने लगा दी. यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में बोला कि एवरीबडी शेयर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर वाज अ कॉमन ऑब्जेक्ट इन दिस केस. कंटिन्यूइंग फर्दर, देयर इज अ केस ऑफ चंद्रभान वर्सेस स्टेट. इट वाज रिपोर्टेड इन 1981 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 196. A common object of unlawful assembly was to, in this case, the common object of unlawful assembly was to murder a particular person. However, in the heat of the moment, one of the members murdered a peaceful intervener. It was held that in the absence of the evidence to contrary, it could not be presumed that the remaining members of the unlawful assembly knew that the murder of an innocent intervener was likely to be caused in the prosecution of common object of murder ऑफ अनदर पर्टिकुलर पर्सन. अच्छा, इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पेक्यूलियर हैं, बड़े खास हैं. ध्यान रखिएगा, हर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे सिचुएशन बदल सकती है. तो जब इंटरवीनर वो किसी फैमिली में मारने नहीं गए थे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरवीनर हो, जिस सर्कमस्टेंसेस में वो जिसको मर्डर करने गए थे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि कोई इंटरवीनर नहीं आएगा, पर अचानक से आ गया, तो उनमें से एक मेंबर ने उसको मार दिया. तो कोर्ट ने इस केस के एविडेंस पे पाया कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन इन सब का नहीं था पीसफुल इंटरवीनर को मारने का. तो एक व्यक्ति की ओवर्ट एक्ट, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट उनके बीच में शेयर नहीं हुआ था, तो एक व्यक्ति की ओवर्ट एक्ट दूसरों को लायबल नहीं करेगी. इसके लिए जिस इंडिविजुअल व्यक्ति ने पीसफुल इंटरवीनर को मारा वही लायबल होगा. नाउ यू मे आस्क कि ऐसे में तो इंटरवीनर की नॉलेज होनी चाहिए. नहीं, देखिए, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन तभी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया कि जब आप वुमेन को अटैक करने जा रहे हो उसकी फैमिली से, तो आपको पता है वहाँ पे इंटरवीनर्स होंगे ही होंगे, इंटरवेंशन होगा ही होगा. लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आप किसी को ऐसे स्पॉट पे मारना चाहते हैं और प्लान भी ऐसे ही करते हैं जहाँ पे कोई भी आपको पता है कि वो एकदम सीक्रेसी में होगा, कोई भी वहाँ पे नहीं होगा. क्योंकि कोई भी जब क्राइम करता है तो वो थोड़ी ना चाहता है कि आई विटनेस हो और कहे कि बाद में जाके हमारे खिलाफ गवाही दे के हमको फंसा देना. ये थोड़ी ना कोई जाता है. तो जनरली क्राइम हमेशा सीक्रेसी में किया जाता है. तो अगर क्राइम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है जो मान लीजिए घर पे है, तो ये तो एक्सपेक्टेशन है, तो नॉलेज वाले क्लॉज में चला जाएगा कि एवरीबडी न्यू इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड. लेकिन जब आप क्राइम सीक्रेसी में कर रहे हैं, अचानक से वहाँ पे कोई आ जाए और एक आदमी पीसफुल इंटरवीनर को मार दे, तो ऐसे केस में चंद्रभान के स्पेसिफिक फैक्ट्स में, जो चंद्रभान के फैक्ट्स थे, उसमें इट वॉज हेल्ड कि जो पीसफुल इंटरवीनर जो था उसको मारने का बाकी के बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट कोई नहीं था, तो जिसने मारा उसी को उसके मर्डर की सज़ा मिलेगी. बाकी ऑब्वियसली जो कॉमन ऑब्जेक्ट उनको एक पर्टिकुलर पर्सन को मर्डर करने का था उसके लिए तो सज़ा मिल ही जाएगी. लेकिन जो पीसफुल इंटरवीनर को जिसने मारा उसके लिए उनको सज़ा नहीं मिलेगी. उसके लिए उसी को सज़ा मिलेगी जिसने वो ओवर्ट एक्ट किया, बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो वहाँ पे आएगा, पीसफुल इंटरवीनर वहाँ पे आएगा. तो इसीलिए मैंने बोला था जो नॉलेज है ना, ये क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी की तरफ जाती है, ऑलमोस्ट टचिंग सर्टेनिटी. ठीक है. सो व्हेन अ लार्ज बॉडी ऑफ, ऐसे समझिए ना, व्हेन अ लार्ज बॉडी ऑफ मेन इज फोर्सिबली ट्राइंग टू अबडक्ट अ वुमेन, तो ये तो समझ में आएगा ना कि वहाँ पे इंटरवीनर्स होंगे, कोई ना कोई तो रेजिस्ट करेगा ही करेगा. इतने आराम से तो कोई कुछ नहीं करने देगा. तो अगर इंटरवेंशन एक प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन है, एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द अनलॉफुल एक्ट का, तो ऐसे केस में यहाँ पे नॉलेज इम्पोर्ट हो जाती है. लेकिन जब क्राइम एक एब्सोल्यूट सीक्रेसी में है, तब वहाँ पे सर्टेन फैक्टर सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है पीसफुल इंटरवीनर का मर्डर कॉमन ऑब्जेक्ट या नॉलेज विच द ऑफेंडर न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड उस क्लॉज में फॉल ना करे. चंद्रभान वर्सेस स्टेट में ऐसा ही हुआ था.
अब एक केस है, वो भी इलस्ट्रेशन देता हूँ, अलाउद्दीन मियाँ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. It was reported in AIR 1989 Supreme Court page number 1456, where the common object was to kill A and it was not to kill B and C, who were not any hindrance to the accused in achieving the common object. It was held that the accused who did not injure or harmed B and C cannot be held liable to any injuries to them as common object to hurt B and C was lacking. अगर मान लीजिए कि एक अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ ए को मारना है और बी एंड सी से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर उसी असेंबली का एक मेंबर को बी एंड सी से बहुत गुस्सा है, बाकी के मेंबर्स को कोई मतलब भी नहीं, ना उनको पता है कि वो कोई हिंड्रेंस है, वो ड्यू टू सम चांस बी और सी भी स्पॉट पे प्रेजेंट है, तो उनमें असेंबली में से एक मेंबर बी और सी को भी हार्म कर देता है, तो उसके लिए जिस मेंबर ने बी और सी को हार्म किया है वही लायबल होगा, बाकी के मेंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में बी और सी को हार्म करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर नहीं हो रहा था. नाइदर इट कुड बी सेड दैट द ऑफेंडर्स न्यू दैट हार्म टू बी एंड सी was such an offense that was likely to be committed. ठीक है. Coming to another point, that was Sufi Abdul Mazid versus state. In this case, the common object of the assembly was to take possession of mosque properties. Mosque को, मस्जिद को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले रहे थे, और वन मेंबर ऑफ द असेंबली विदाउट एनी प्रोवोकेशन, असेंबली के एक मेंबर ने बिना किसी प्रोवोकेशन के या इंस्टिगेशन के बाय अदर मेंबर्स एक मर्डर कमिट कर दिया, एक मेंबर ने. इस केस में भी ये पाया गया कि कॉमन ऑब्जेक्ट असेंबली का मर्डर करने का था नहीं, यहाँ पे बस मॉस्क प्रॉपर्टीज़ का पोजेशन लेने गए थे, और वो भी फोर्सिबली पोजेशन नहीं लेने गए थे. एक मेंबर्स को उसमें अपने आप से बिना किसी प्रोवोकेशन या इंस्टिगेशन के उसने किसी का मर्डर कर दिया. सो इन दिस सिचुएशन द इंटायरिटी ऑफ द असेंबली वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही हेल्ड लायबल किया गया था. नाउ कमिंग टू द केस ऑफ मुहू नाइकर वर्सेस स्टेट, where a large crowd collected, all of whom were not shown to be sharing common object. A stray assault by one of the members on a particular witness was not called an assault in prosecution of common object. एक large crowd गैदर हुआ और यहाँ पे ये नहीं दिखा पाया प्रोसिक्यूशन कि उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था किसी एक पर्टिकुलर विटनेस को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्म करने का. तो एक स्ट्रे असॉल्ट अगर किसी एक मेंबर ने कर दी एक पर्टिकुलर विटनेस पे वाइल ड्यूरिंग दैट गैदरिंग, तो ये नहीं कहा जा सकता इट वाज इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये कुछ इलस्ट्रेशन थे जो मैंने आपको थोड़ा इसकी पोजीशन को एल्यूसिडेट करने के लिए बताए. अभी मैं और इलस्ट्रेशन दूंगा. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, चंद्र बिहारी गौतम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का. इसके फैक्ट्स क्या थे? इन दिस केस द फैक्ट्स वर दैट ऑन 23rd of July 1994 एट अबाउट 2 AM, रात के 2 बजे, ये एक अनलॉफुल असेंबली, द अपेलेंट्स मिस्टर चंद्र बिहारी गौतम एंड अदर्स वर अकम्पनीड बाय 300 to 400 persons. They were all armed with deadly weapons like guns and swords and knives etc. इन 300-400 लोगों ने along with चंद्र बिहारी गौतम attacked the house of गणेश सिंह in village अमरपुर. भोली सिंह एक विक्टिम था, भोली सिंह को गोली मार दी और नवलेश सिंह, शिव नारायण सिंह, केदार सिंह, संजय सिंह और अजय कुमार को जिंदा जला दिया इनसाइड देयर रूम व्हेन दे वर हाइडिंग. जो घर में छुपे थे, जिस रूम में छुपे थे उसको आग लगा दी. तो उसके चक्कर में भोली सिंह क्या कहते हैं, नवलेश सिंह, शिव नारायण सिंह, केदार सिंह, संजय सिंह और अजय कुमार को जिंदा जलाया गया वेयर दे वर हाइडिंग इन द रूम, और भोली सिंह को गोली मार दी गई थी. तो एफआईआर फिर हुई. इस केस में कई मेंबर्स आए, तो प्रोसिक्यूशन ने कई लोगों की गवाही दी. तो उसमें गणेश सिंह वॉज द प्रोसिक्यूशन विटनेस. एक देयर वॉज दिस सर्टेन गणेश सिंह हु वॉज द प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5. तो उसने बताया, ये गणेश सिंह भी वही है जिसने एफआईआर फाइल की थी और इन्फॉर्मेंट भी था,
कि वो अलॉन्ग विद द अदर फैमिली मेम्बर्स छत की अपर फ्लोर पे हाउस के सो रहे थे। रात के 1:30 बजे थोड़ा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो फीमेल मेंबर्स थी फैमिली की वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हाउस की, और मेल मेंबर्स भी जो थे वो जो 3 अलग अलग रूम में थे ऑन द सर्टन साइड ऑफ द अपर हाउस, वो भी नीचे ही आ गए। जो वेस्टर्न रूम था घर का, जो नॉर्थ साइड को फेस कर रहा था, वेस्टर्न रूम था। देखिए केस में ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। तो जो वेस्टर्न रूम था जिसमें नवलेश सिंह, संजय सिंह, अजय कुमार, केदारनाथ सिंह और शिवनारायण सिंह और बोली सिंह सो रहे थे। जो इन्फॉर्मेंट था जिसने FIR फाइल की, उसने बीच के रूम में वो सो रहा था, और एक और रूम था जिसमें उसका भतीजा सो रहा था जिसका नाम था धंजू कुमार। उसके आधे घंटे बाद जो इन्फॉर्मेंट है, जो गणेश सिंह है, इसको कुछ आवाज़ें आईं बहुत शोर शराबे की। तो वो नींद से उठा और फिर उसने देखा कि छत से, बालकनी से देखा कि क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि वन पर्सन, एक आदमी कह रहा है कि नवलेश बाहर आ जाए, नवलेश सिंह बाहर आ जाए और सरेंडर कर दे, एज द पर्सन स्पीकिंग क्लेम टू बी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो कोई व्यक्ति उस पूरे क्राउड में से प्रिटेंड कर रहा था कि वो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है। वो चीख रहा था कि नवलेश सिंह बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। उसने ये भी सुना कि अगर नहीं आओगे तो देयर वुड बी डायर कॉन्सिक्वेंसेस, और साथ में ये भी बोल रहे थे कि सरेंडर कर दो। तो और अगर सरेंडर कर रहे हो तो हाउस के सामने के दरवाजे से आओ, सामने के दरवाजे से आने को बोला। गणेश सिंह ने आगे भी बताया कोर्ट को कि ही सॉ सम फायर लाइक सब्सटेंसेस जो उन लोग के हाथ में थे, एंड ड्यू टू दैट ही रेज्ड एन अलार्म दैट द एक्सट्रीमिस्ट हैव अराइव्ड इन खाकी ड्रेस। The culprit set the room on fire in which the Navlesh was sleeping along with the others. The fire was set with the help of petrol bombs. उन लोग के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स थे, और उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब से जिस रूम में लोग सो रहे थे, जिसमें अभी बहुत सारे लोग मैंने आपको बताए, द विक्टिम्स व नवलेश सिंह, शिवनारायण सिंह, केदार सिंह, संजय सिंह एंड अजय कुमार, उनको उस रूम में पेट्रोल बॉम्ब फेंक के आग लगा दी, और जिसकी वजह से वो लोग ज़िंदा जल गए। तो ये था कि गणेश सिंह ने ये सब देखा कैसे। तो एक क्या कहते हैं, जो रात जब हो रही थी ना, तो क्योंकि वहाँ पे टॉर्च सब लोग लिए हुए थे, तो वो एक छोटे से होल से इन लोग को देख रहा था। फिर साथ में उसने ये भी देखा कि 300-400 लोग थे, उन्होंने कई राउंड फायर किए हवा में, जिसकी वजह से इंटायर लोकेलिटी वॉज टेरिफाइड। और मोटिव बताया गया कि नवलेश सिंह की मनोज कुमार से दुश्मनी थी, जिसके कारण से ऐसी घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैक्ट्स में कई बातें कही। पहली बात उसने ये कही कि सेक्शन 149 हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट डील्स विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, and the second part deals with the liability of the members of the unlawful assembly who knew that the offence was likely to be committed in the prosecution of object which they have assembled, even if the common object of the unlawful assembly stated to be apprehending Navlesh Singh only। क्योंकि यही प्ली इन लोगों ने ली थी, जो मैंने जो आप समझ सकते हैं, इन्होंने लिया था कि हम तो नवलेश सिंह को ही अप्रीहेंड करना चाहते थे, हमारा कोई दुश्मनी नहीं थी बाकी लोगों से, ना हम उनको मारना चाह रहे थे। तो कोर्ट सेड इवन इफ योर कॉमन ऑब्जेक्ट was to apprehend Navlesh Singh, the fact that the accused persons had attacked the house of the complainant at the dead of the night and were armed with deadly weapons including guns, petrol bombs, this proves beyond reasonable doubt that they knew that in prosecution of the alleged initial common object murders were likely to be committed। वो कह रहे थे कि हम सिर्फ अप्रहेंड करना चाहते थे। कोर्ट ने बोला आप अप्रीहेंड करना नहीं चाहते थे, ये जो गन्स लेके आए, पेट्रोल बम लेके जाए, तो फिर जला दिया घर को, आपका इंटेंशन मर्डर करने का था। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपके कंडक्ट से दिख रहा है, आपके अटरेंसेस से दिख रहा है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस से दिख रहा है, और जो डेडली वेपन्स आप कैरी कर रहे थे उससे दिख रहा है। कोर्ट कंटिन्यूड एंड सेड द
knowledge of the consequential action in furtherance of common object is sufficient to attract the applicability of section 149 for holding the members of unlawful assembly guilty for commission of the offence by any members of such assembly. In this case, the appellants along with others have been proved to have formed unlawful assembly, the common object of which was to commit murder and arson, and in prosecution of that said common object they raided the house of the informant armed with guns and committed the offence. तो उन्होंने बोला इन लोगों का कन्विक्शन एकदम राइट है और द कोर्ट upheld their conviction, कहते you all deserve it. Continuing further, फतेह सिंह में एक और ग्राउंड लिया, इन लोगों ने एक और ग्राउंड लिया था कि यार हम लोग ने तो कोई ओवर अटैक नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से बोल दिया कि mere fact that no overtax was attributed to the members of unlawful assembly was not sufficient to disprove the charge under section 149 of the IPC. इसमें आपने कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर किया, you are the member, that's it, you are liable for it. Now I'll give you another illustration. मंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 3755. इसमें लैंड डिस्प्यूट हुआ था. अक्यूज्ड पार्टी फायर्ड एट डिसीज पार्टी आफ्टर एक्सचेंज ऑफ वर्ड. दोनों में गोलियां चली. जो अक्यूज थे उसने गोली चला दी जब डिसीज से उसका वर्बल एक्सचेंज हो रहा था, अल्टरकेशन हो रहा था. अल्टरकेशन इज झगड़ा वर्बली जो कर रहे थे लोग. मैनी मेंबर्स एक्सेप्ट द टू अक्यूज पार्टी वेर आर्म्ड विद फायर आर्म्स. बहुत सारे मेंबर्स थे जिनके पास फायर आर्म्स थे. अनआर्म्ड मेंबर्स ऑल्सो डिड नॉट कमिट एनी ओवरटैक्स इस केस में, लाइक द एक्सहॉर्टेशन टू द आर्म्ड मेंबर्स. तो इस केस में आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? फिर से मैं एक बार फैक्ट रिइटरेट कर देता हूँ. लैंड डिस्प्यूट था. अक्यूज्ड पार्टी में से एक ने गोली चलाई. कई मेंबर्स थे जिनके पास फायर आर्म्स थे, पर उन्होंने कोई फायर आर्म नहीं चलाया. फायर आर्म होते हुए भी उन्होंने फायर आर्म नहीं चलाया. लेकिन उनमें से एक ने फायर आर्म चला दिया, बाकियों ने नहीं चलाया. फैक्ट्स पे ये भी इमर्ज होके आता है कि इनमें से किसी ने एक्सहॉर्टेशन नहीं किया कि गोली चला दो, ठीक है. और अनआर्म्ड मेंबर्स जो थे, चूँकि पूरी पार्टी में से 2 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने कोई ओवर एक्ट नहीं की थी, जैसे कि एक्सहॉर्टेशन टू द आर्म्ड मेंबर्स टू कमिट एन ऑफेंस. होता है ना कि जिसके पास आर्म्स नहीं होते वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास आर्म्स है, जाओ गोली चला दो. तो ये पाया गया फैक्ट्स पे कि जो अनआर्म्ड मेंबर्स थे, जो 2 अनआर्म्ड मेंबर्स थे अक्यूज्ड पार्टी में, उन्होंने किसी भी तरीके की गोली भी नहीं चलाई. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला कि जो अनआर्म्ड मेंबर्स थे जिन्होंने ना एक्सहॉर्टेशन किया आर्म्ड मेंबर्स को गोली चलाने के लिए, ना उन्होंने कोई ओवर एक्ट की, तो ऐसे केसेस में ये नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट था बाकी के मेंबर्स के साथ, ठीक है. तो वह यहाँ पे ये जो 2 अनआर्म्ड मेंबर्स थे इन लोग को छोड़ दिया गया था. ध्यान रखिएगा, इन कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन टू सेक्शन 34 जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, 149 में एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. मियर मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली से आपकी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है. ये सेक्शन हर एक पर्सन का आइडेंटिफिकेशन भी नहीं रिक्वायर करता, इतना ही रिक्वायर करता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग एन एक्ट एंड फाइंडिंग दैट 5 और मोर पर्सन्स वर द पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, ठीक है. ये भी फैक्ट कि ऑल ऑफ सबको नहीं आइडेंटिफाई किया गया विल ऑल्सो नॉट अफेक्ट द सेक्शन, क्योंकि जब लार्ज भीड़ होती है तो बड़ा मुश्किल होता है सबको आइडेंटिफाई करना. लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर जाता है कि उनकी प्रेजेंस थी, तो भले ही विटनेस ना आइडेंटिफाई कर पाया हो, इवन देन दे कैन बी कन्विक्टेड. तो ये बात याद रखिएगा. हो सकता है कि एक अनलॉफुल असेंबली का कोई मेन इंटेंशन हो और उसमें से एक छोटी अनलॉफुल असेंबली का उसी बड़ी अनलॉफुल असेंबली में कोई दूसरा इंटेंशन हो.
और ये भी हो सकता है कि उसी असेंबली में कई लोगों को शायद कॉमन ऑब्जेक्ट पता ही ना हो, उनको लगा कि हम बात करने जा रहे हैं। जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन ऐसे बड़े आराम से समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपको एक ग्रुप कहता है कि यार आप लोग लॉयर्स हो, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे साथ चले चलो। वो एक आदमी है, उसने हम लोग से बहुत पैसा लिया हुआ है और पैसा दे नहीं रहा है, तो आप उसको कुछ बता दो लीगल कॉन्सिक्वेंस के बारे में कि अगर पैसा नहीं देगा तो क्या होगा। आप कहते हो ठीक है, वो आपको आपकी फ़ीस देते हैं, आप उनके साथ चले जाते हो। लेकिन जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आपके साथ जो लोग हैं उनके पास वेपन्स हैं, आपके पास नहीं है। इस बीच में एक वर्बल ऑल्टरकेशन शुरू हो जाता है मेन क्रेडिटर और डिसीज्ड पार्टी के बीच में। उनमें से एक मेंबर गोली चला देता है। यू आर शॉक्ड कि अरे ये क्या कर दिया, आप तो मुझे ये बता के लाए थे। तो यहाँ पे ना आपके पास कॉमन ऑब्जेक्ट है, ना आपके पास नॉलेज है, आप तो वहाँ पे सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बताने गए थे। यू आर नॉट इवन अवेयर कि उनका इंटेंशन ये है। इवन दो यू आर प्रेजेंट, you were present at the spot, you were present in the assembly, you were not a part of the unlawful assembly। असेंबली में सिर्फ प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, असेंबली का मेंबर होना ज़रूरी है। सो इस इलस्ट्रेशन में जो मैंने आपको पर्सनल कैपेसिटी में दिया है आपकी, कि इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द अनलॉफुल असेंबली, दैट बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन दैट यू आर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो ये ऐसे इलस्ट्रेशन है, इसमें से अभी आप समझ सकते हैं कि मेरली बाय बीइंग प्रेजेंट एट द स्पॉट all the time it cannot be construed that a person was a member of unlawful assembly। थोड़ा और पुख्ता सबूत चाहिए होता है, वरना आप इसका पर कॉन्ट्रा रिजल्ट देख सोचिए ठीक इसी के कॉन्ट्रडिक्शन में कि अगर ये पोजीशन ना होती कि mere presence by itself cannot make a person liable, तो फिर इसमें तो ये हो जाता है ना कि आप चाहे आप सामान खरीदने जा रहे हैं, चाहे आपको धोखे से अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनाया गया है, आप तो हर सिचुएशन में लायबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप मेंबर थे या कॉमन ऑब्जेक्ट आप लोग ने शेयर किया। ये ट्विन फैक्ट्स देखने ज़रूरी हैं। ये देखना ज़रूरी नहीं है कि वर यू ओनली प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अगर देखा गया सिर्फ प्रेजेंस एस्टैब्लिश्ड है, बाकी एक भी चीज़ नहीं एस्टैब्लिश हो रही है, देन यू आर नॉट लायबल अंडर सेक्शन 149 एट ऑल। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस, और जितने भी मैंने इलस्ट्रेशन दिए हैं, चाहे वो केस लॉ के हों, चाहे वो मेरे पर्सनल बनाए हुए हों, ये सारे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर वो समझ लिए तो आपको पूरा स्कोप समझ में आ जाएगा 149 का कैसे काम कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दीज आर इलस्ट्रेशंस, दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी मेड एग्जॉस्टिव, इस आपको स्कोप समझाने के लिए। अब एक सिचुएशन से और डील करता हूँ शॉर्ट में, कि मान लीजिए कि इन अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स एक अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को अटैक करने जाती है। ठीक है, लेट अस सपोज कि एक सिटी में एक लोकेलिटी है ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक अनलॉफुल असेंबली सोचती है कि उस सिटी की उस पर्टिकुलर लोकेलिटी को हम अटैक करेंगे। ऑलराइट, तो जब वो ये सोचती है कि हम उस कम्युनिटी को अटैक करेंगे और वो अटैक करने पहुंच जाते हैं उनको इन परसुएंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, एंड दे ऑल्सो कैरी डेडली वेपन्स। और जब वो अटैक करने पहुंचते हैं तो पाते हैं कि दैट कम्युनिटी इज़ नॉट एट ऑल देयर। ठीक है, वो कम्युनिटी वहाँ पे नहीं है जिसको वो पर्टिकुलरली टारगेट करना चाह रहे थे। लेट अस सपोज दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में बहुत स्मॉल नंबर में रह रही थी, वो चली गई अपनी पिलग्रिमेज पे। देन क्या हुआ कि वो जो कम्युनिटी वहाँ पे डेडली वेपन्स लेके पहुँची थी, उसमें से कई मेंबर्स थोड़ा आगे चलने के बाद किसी दूसरी कम्युनिटी पे अटैक कर देते हैं। एक कम्युनिटी मेंबर किसी दूसरी जगह जाके रॉबरी करना शुरू कर देता है और कुछ मेंबर्स डकैती करना शुरू कर देते हैं। कैन इट बी हेल्ड कि यहाँ पे ये सारी जो अलग अलग एक्ट्स हो रही हैं इन अ गिवन स्पॉट,
ये वर दे इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या ये कहा जा सकता है? द आंसर इन दिस इलस्ट्रेशन विल बी नो। इसलिए क्योंकि वो जिस कम्युनिटी को अटैक करने जा रहे थे, तो वो गोल अटेन करने के दौरान जो भी लाइकली ऑफेंसेस होते, तो वो अलग बात थी, वो हो सकता है उसके अंदर आ जाते। लेकिन जब देखा कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी वहाँ नहीं है और जो अनलॉफुल असेंबली थी वो केओटिक हो गई उसके बाद, तो वहाँ के वो मेन अनलॉफुल कम्युनिटी, वो मेन अनलॉफुल असेंबली छोटे छोटे पार्ट्स में बदल गई और अलग अलग जगह जाकर अपने पर्सनल ऑफेंसेस कमिट करने लगी, वट एवर वर द क्रिएशंस ऑफ देयर डेप्रेव्ड माइंड, तो वो कमिट करने लगी। तो इन दैट सिचुएशन वहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स जो होंगे या इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर असेंबली जो वो ऑफेंस कर रहे हैं वो लायबल होंगे, असेंबली एज अ होल नहीं लायबल होगी। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल मेंबर है जिसने वहाँ पे इंडिविजुअल ऑफेंसेस किए, क्योंकि मेन कॉमन ऑब्जेक्ट जो था, जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अटैक करना, वो तो फेल हो गया। और जब वो फेल हो गया तो जब अनलॉफुल असेंबली केओटिक होके इधर उधर चीज़ें करने लगती है, एक मेंबर कहीं जाके कुछ लूट रहा है, दूसरा मेंबर कहीं जाके केओस फैला रहा है, तीसरा मेंबर कहीं जाके कार में तोड़फोड़ करने लगा है, मिसचिफ करने लगा, इन दैट सिचुएशन आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट था। यहाँ हर व्यक्ति का इंटेंशन अलग है एंड देयर इज़ नॉट अ कॉमनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव अमंग द इंटायरिटी ऑफ द असेंबली। अब नहीं है, ओरिजिनली तो था, लेकिन चूंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, चूंकि वो पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको टारगेट करना चाह रहे थे, वो पिलग्रिमेज पे चली गई। तो इन दैट सिचुएशन एवरी इंडिविजुअल क्रिमिनल एलिमेंट इन दैट असेंबली जो अपना पर्सनल इंटेंशन विच इज़ डेप्रेव्ड इन नेचर एंड विच इज़ एन ऑफेंस अंडर IPC कैरी आउट करता है, उसके लिए पूरा सेक्शन 149 के यूसेज से पूरी की असेंबली को लायबल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हर वो मेंबर, या मान लीजिए उस बड़ी अनलॉफुल असेंबली की एक छोटी सी कम्युनिटी, लेट अस सपोज अनलॉफुल असेंबली 200 मेंबर्स की थी, उसमें से 5 मेंबर्स जाके डकैती कर लेते हैं, सिर्फ 5 मेंबर्स, बाकी के नहीं, बाकी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो इन दैट केस ओनली दैट 5 मेंबर्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर डकैती, नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, पूरी की पूरी 200 नहीं हो सकती। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, कॉमन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसके बाद असेंबली जाने लगी, अपने अपने रास्ते डिस्पर्स होने लगी। अब जब डिस्पर्स हो रही है तो उसमें से कई केओटिक एलिमेंट्स निकल सकते हैं जो वहाँ पे केओस फैलाएं, कई जगह जाके केओस फैलाएं, तो वहाँ पे कॉमनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव जा चुका है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति को, या उस बड़ी असेंबली से अगर छोटी असेंबलीज निकलनी है, उनको अनलॉफुल असेंबलीज निकलनी है, तो उनको उनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए पनिश किया जा सकता है, बट नॉट द ओरिजिनल असेंबली एज अ whole. Alright, so that was it for today. Tomorrow I'll tell you a situation when a right of private defense is being exercised against an unlawful assembly. तो उसका क्या होगा? अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर मान लीजिए एक असेंबली के खिलाफ कोई असेंबली एक्सरसाइज कर रही है, तो क्या वो भी अनलॉफुल असेंबली हो जाती है या वो फ्री फाइट की डेफिनेशन में जाएगा? वो क्या होगा उसका? तो मैं उस एस्पेक्ट से थोड़ा डील करूँगा टुमारो। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे।